بریکنگ نیوز ہے مظفر گڑھ سے، جہاں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر دہشت گرد یاسین بھی شامل ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ادھر کراچی میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے کراچی میں 2 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، جنوبی پنجاب میں بھی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا اور مظفر گڑھ میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں کالعدم تنظیم کا دہشت گرد یاسین بھی شامل ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد ہوئے ہیں، جبکہ کراچی میں بھی کارروائی کی گئی۔ کراچی میں 2 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ مظفر گڑھ کے علاقے پتی سلطان محمود شرکی میں سینٹرل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کالعدم تنظیم کے دہشت گرد یاسین کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ اس دوران دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 فرار ہوئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 6 رائفل، 3 پستول، گولیاں اور دستی بم برآمد کیے گئے۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد جاری ہے۔ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کے دوران متعدد ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ لاہور میں سی ٹی ڈی کا کامبنگ آپریشن، درجنوں گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ راولپنڈی میں بدھائی اور گردونواہ میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ آپریشن کیا۔ افغانیوں سمیت درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد جاری ہے۔ اسی آپریشن کے تحت ملک بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں بھی کامیاب کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کے دوران متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور میں سی ٹی ڈی نے کامبنگ آپریشن کیا ہے اور درجنوں گرفتاریاں ہوئی ہیں، جبکہ راولپنڈی کے علاقے پیر بدھائی اور گردونواہ میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ افغانیوں سمیت درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک بھر میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن رد الفساد جاری ہے۔ لاہور میں داتا دربار اور گردونواہ میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے کامبنگ آپریشن کے دوران کارروائی کی۔ اس دوران درجنوں گھروں کی تلاشی لی گئی۔ آپریشن کے دوران شناختی کوائف نہ رکھنے پر متعدد مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں پیر بدھائی اور گردونواہ کے علاقوں میں رینجرز اور پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قائد آباد، صفدرآباد، فوجی کالونی اور پیر بدھائی میں بس اسٹینڈز کی تلاشی لی، جبکہ گھر گھر چیکنگ اور مشکوک افراد کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ آپریشن کے دوران افغانیوں سمیت متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمان سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد ہوئی۔ ادھر چنیوٹ میں پولیس اور ایلیٹ نے آپریشن کے دوران 100 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ خانے مال میں بھی سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ادھر پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو بارود سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناروال سے آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں، جہاں پولیس اور حساس اداروں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیے ہیں۔ شاہ غریب کے علاقے سے افغان باشندے سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار افراد تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز محمد ہمایوں سے۔ جی ہمایوں۔ یہ تشام الرحمان، یہ حالیہ دہشت گردی کے بعد ملک بھر کی طرح ناروال میں بھی جو ہے وہ خصوصاً افغان باشندوں کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور حساس ادارے مسلسل سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ناروال محلہ رضویہ کالونی میں حساس اداروں اور پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 4 افغانی باشندوں کو گرفتار، جبکہ تھانہ شاہ غریب کے علاقہ موضع کجروڑ میں 1 افغان باشندے کو گرفتار کر کے ان کو معلومات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ پولیس اور حساس ادارے جو ہیں وہ ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں، ناکے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ جگہ پر افغان باشندوں کی خاص طور پر چیکنگ کی گئی ہے۔ پولیس کے اداروں کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو 4 افغان باشندے گرفتار کیے گئے ہیں، یہ غیر قانونی طور پر
नारोवाल में रहायश पजीर थे। ये तशामुर रहमान जी। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां पर दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर नमाज जुमा के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वक्त न्यूज के नुमाइंदे रफीक सुल्तान मॉल रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद इत्तलात जानेंगे। रफीक सुल्तान, अपडेट कीजिएगा, जुम्मे की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी हालिया दहशतगर्द की इस नई लहर के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट के अहकाम किए गए। इसी हवाले से आज आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा की जानिब से तमाम आरपीओज और डीपीओज को किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट के अहकाम जारी किए गए। लाहौर में बिलखुसूस लाहौर में आज जुम्मतुल मुबारक की शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो नमाज जुमा के लिए मसाजिद का रुख करती है। आला पुलिस अफसरान की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट के साथ साथ तमाम नमाजियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तमाम मज़ारात, मसाजिद, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ आईजी पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक मसाजिद और मज़ारों के साथ साथ तमाम जो निजी स्कूल्स हैं, मार्केटें हैं, उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाने का अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो वहाँ पर भी चेकिंग का जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के साथ साथ वहाँ पर नफरी बढ़ाई गई है। सर्च ऑपरेशंस का भी आगाज किया गया है। आज जुम्मतुल मुबारक के मौके पर जो है वो मजीद बढ़ा दी है सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी के खदशात पेश नजर जो सिक्योरिटी है वो मजीद बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया रफीक सुल्तान। मुल्क भर से कुछ मजीद खबरें। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद लाहौर हाई कोर्ट में एलीट फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हाई कोर्ट के अहाते में मोटरसाइकिलों, वकला और प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी खदशात और लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के पेश नजर अदालत आलिया की सिक्योरिटी एलीट फोर्स के सुपुर्द की गई है। फोर्स की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला को मरासला भिजवाया था। दूसरी जानिब सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हाई कोर्ट के अहाते में मोटरसाइकिलों, वकला और प्राइवेट गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई भी साइल शनाख्ती कार्ड जमा कराए बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस हाई कोर्ट के अहाते में वाक़े 40 सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टर्स भी मिसमार किए जाएंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता रोज होने वाला धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। धमाके में बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। धमाके से तबाह होने वाली इमारत का मलबा हटा दिया गया है, जबकि मार्केट ताहाल सील है, जबकि इलाके में तमाम स्कूल्स बंद रहे। लाहौर के इलाके डिफेंस में होने वाले धमाके की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। जायद धमाके से बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हो सकता है। दूसरी जानिब धमाके का मुकदमा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया। सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 30 से ज्यादा अफराद अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से बड़ी तादाद जनरल अस्पताल में दाखिल है। धमाके में तबाह होने वाली इमारत के मलबे को हटा दिया गया, जबकि मार्केट ताहाल सील है। इलाके में स्कूल भी बंद हैं। दूसरी जानिब जख्मी वेदर के मुताबिक इमारत में धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। 1-2 रोज से बिल्डिंग में गैस लीकेज की बू आ रही थी। मैनेजमेंट को इससे आगाह करने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने सूबे भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने के लिए मरासला जारी कर दिया है। बैरून सूबाई चेक पोस्टों पर मजीद सख्त चेकिंग होगी। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पंजाब पुलिस ने सूबे भर में इकदाम पहले से भी सख्त करने का फैसला कर लिया है। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने सूबे भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने के लिए तमाम आरपीओज और डीपीओज को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी और चेकिंग को मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई हैं। मरासले में कहा गया है कि तमाम आरपीओज और डीपीओज अपने अपने इलाकों के हसास मकामात और तनसीबात के गिर्द पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाएं। बैरून सूबाई चेक पोस्टों पर मुश्तबा अफराद पर नजर रखते हुए गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मशकूक अफराद की चेकिंग मजीद सख्त कर दी जाए। आईजी पंजाब ने हिदायत जारी की है कि सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों की ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग को भी यकीनी बनाया जाए, जबकि मार्केटों, प्लाजों, तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए भी भरपूर इंतजाम करने को कहा गया है। नाज़रीन, लाहौर से आपको ताज़ा खबर से आगाह करें। इलाके डिफेंस में होने वाले धमाके के जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जनरल अस्पताल में अब भी 5 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 1 को आईसीयू जबकि 4 को इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वाले से मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं जनरल अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक अरशद आसिम से। जी मलिक अरशद आसिम, आगाह कीजिएगा कैसी तबीयत है इन मरीजों की जो कि यहाँ पर जेर इलाज हैं? जी, यहाँ पर टोटल जो मरीज लाए गए थे जनरल अस्पताल में वो 18 उनकी तादाद थी और 7 डेड बॉडी जो हैंड ओवर उनके लवाहिकीन को कर दी गई है। इस वक्त भी लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर मरीज जेर इलाज हैं।
10 मरीजों को अब से थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्चार्ज करने की मंजूरी दी गई है। जो 5 यहाँ पर मरीज जेर इलाज हैं, उनमें से एक मरीज को अभी भी आईसीयू में रखा गया है, जिसको हेड इंजरी का जो है वो पता बताया जा रहा है कि उन्हें सर पे जख्म लगे थे, इस वजह से उनका इलाज मुआवजा आईसीयू में रहकर ही किया जा रहा है। जबकि जो बाकी 4 मरीज हैं उनको यहाँ इमरजेंसी के मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जिन लाशों की हैंड ओवर किया जा चुका है वो अपने अपने आबाई इलाकों पहुंच चुके हैं और आज उनकी तदफीन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जो यहाँ पर इस वक्त 5 मरीज जेरे इलाज हैं, उनको हुकूमत की तरफ से बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें इलाज मुआवजे के मामले में किसी भी किस्म की जहमत और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अगर हम बात करते हैं नेशनल अस्पताल की, तो वहाँ पर भी इस वक्त 7 जो मरीज हैं वो जेरे इलाज हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उनमें से 3 अभी भी जो मरीज हैं वो आईसीयू में हैं और बाकी जो 4 मरीज हैं उन्हें मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात के अंदर मुंतकिल किया गया है और उन्हें वहाँ पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इन मरीजों को देखने के लिए, इनकी तीमारदारी के लिए इनके लवाहिकीन का तांता बंधा हुआ है, वो आते हैं, इनकी खैरियत मालूम करते हैं और इसके बाद उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो जो है वो दिखाई देते हैं। जी शुक्रिया आपका मलिक अरशद।